Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to the second lecture on the course Organizational Behavior. Let's have a recap of what we did in our first lecture. Then we start with the contents of the second lecture. So, during the first lecture, we had an introduction to organizational behavior, basically. As you all know, we discussed the characteristics of different managers, the levels at which different managers operate, why do we have different managerial roles, right, and then what are the specific objectives or the specific goals that the managers at different levels have, what are the functions that they perform, and what qualities, what traits do the managers require to have. So we had a discussion of all these characteristics or about the managers in the organization. Then we had a discussion about organizational behavior, that what is organizational behavior, why we study the role of managers, or why we study the functions of manager when we are discussing organizational behavior. That is an important point, and you people should be able to address it, that why study the functions and the roles of the managers when we are discussing organizational behavior. Okay, then we had a discussion on the different systematic studies of organizational behavior, the value of those systematic studies of organizational behavior, and we also in the end discussed the major challenges and opportunities for the managers to use organizational behavior concepts, right? So just as we can get hints from the last question, from the last point about the question we raised, that why we need to study the role or the function of managers in organizational behavior, that is because, of course, all the practices that are related to organizational behavior or related to employees' attitudes and behaviors, that how the different practices, how the work environment and stuff affects the employees' behavior, they are all coming from the managers, or they're all coming from the department, from the organization, from the policy documents of the organization, and these practices, of course, have to be implemented by the managers, right? That is why the role of the managers is very important, because manager is a very important party to organizational behavior, right? And the manager has a very important role to play when it comes to the alignment of the employees' attitudes and behaviors, or employees working at the workplace. Okay, these are all the topics that we had discussed in our lecture 1 in detail, and I hope that they give you a very good understanding of organizational behavior, the contents of organizational behavior, like what you can expect in organizational behavior, and so on, right? So for now, today's lecture, we are going to discuss the influences on employee behavior. So as you know that we already discussed that organizational behavior is about the study of the employee's behavior at the workplace, right, or the attitudes or whatever affects the employee's behavior, right? So it's the study of employees' behavior at the workplace. Now herein we'll be studying the different influences on employee behavior, that what are the different factors which are influencing the employee behavior. Then what we do is that for our next lectures, the categorization of these lectures is like that. We study all those factors starting from the individual level, and then moving up the level to the team level, group level, then the organization level, right? So all the different levels, the work environment, the job characteristics, motivation, and all the different concepts we'll be studying at these different levels, और हर लेवल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके अंदर हम इन ट्विन करके उनको हम उसमें फिर स्टडी करेंगे, इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड उसके कैसे डिफरेंट एक तो स्टेप्स में डिस्टिंग्विश करेंगे, और फिर हर स्टेप की क्या एडेड वैल्यू है या उसका क्या मीनिंगफुलनेस है, वो कैसे एम्प्लॉय बिहेवियर को हर स्टेप या हर एंटिटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न
इन दीज लेक्चर्स। तो मोर और लेस हम इस तरह का पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल को, फिर टीम और ग्रुप लेवल को कवर करें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल को कवर करें, ठीक है। और जो है फिर हम HRM प्रैक्टिसेस को भी विल हैव अ फ्यू सेशंस ऑन HRM प्रैक्टिसेस, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन HRM practices and organizational behavior. So we'll try to establish a link between HRM practices and organizational behavior, and we'll see that how these HRM practices influence employees' behavior at the workplace. ठीक है, बिकॉज HRM प्रैक्टिसेस जो हैं उनका मेन मकसद क्या है, उनका भी यही है कि एम्प्लॉयज़ की जो बिहेवियर उसमें अलाइनमेंट और मॉडिफिकेशन की जाए इन अ वे दैट इट इज़ एज पर डिज़ायर्ड, इट इज़ द वे इट इज़ डिज़ायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड हो, या ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इट इज़ इन अ डिज़ायरेबल वे उसको अचीव कर सके, उनका बिहेवियर इस तरह का हो। देयरफॉर सिंस HRM का भी यही मकसद है, और उनमें क्या व्हाट आर द ओवरलैप्स बिटवीन HRM and organizational behavior, how they are related and linked, it is important to build an understanding on that. और हम अपने last few lectures जो हैं वो उसी तरह से ही उनको भी करेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो मेन की बुक है इसके लिए जज एंड रॉबिन्स की है, वो जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, उसमें आपको जो पैटर्न उस बुक में मिलेगा, तो मोर और लेस वी आर ट्राइंग टू फॉलो द सिमिलर पैटर्न, ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इसमें आपकी इंक्लूड भी मैं करूँगी, और एक दो टॉपिक्स शायद इसमें एक्सक्लूड करूँ उस बुक में से, और जो इंक्लूड करूँगी टॉपिक्स वो ऑफ कोर्स मैं आपको बताती चलूँगी कि ये हमने इंक्लूड किया है, और ये यू हैव टू रेफर इट टू दिस बुक फॉर दिस टॉपिक। तो अब जैसे इसमें इस बुक में जज की जो मैंने आपको बताई है, इसमें अगर जैसे हम देखें तो लास्ट मेरा ख्याल है चैप्टर है HRM प्रैक्टिसेस का, तो दैट इज़ ओनली जस्ट वन चैप्टर, ठीक है। अब वो जो उसकी, लेकिन आई विल ट्राई कि जो मेन की HRM प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर मैं आपके साथ 2 या 3 लेक्चर्स करूं, जिसमें आपको एक क्लियर जो इम्पॉर्टेंट HR प्रैक्टिसेस हैं जो क्रिटिकली एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, सो विल ट्राई टू पिक अप दोज प्रैक्टिसेस एंड ट्राई टू सी दैट हाउ दे influence employees behavior, how they influence employee attitudes and employees behaviors, right? And so उनकी understanding organizational behavior में बहुत important है। therefore हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, right? अब इस लेक्चर में मैं आपको बता रही थी कि हम influences अब देखेंगे employee behavior पे। तो इसमें जो है आउटलाइन इसकी स्पेसिफिकली हम देख लेते हैं कि आउटलाइन इसकी क्या है। पहले तो हम देखेंगे मॉडल ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, ठीक हो गया जी। तो मॉडल ये शो करेगा बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल, जो ये शो करेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या उसको डिटरमिन कर रहे हैं, या कौन से उसके एंटीसीडेंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, ठीक है, हाउ यू कैन कैटेगराइज एम्प्लॉय बिहेवियर, ठीक है, व्हाट एम्प्लॉय बिहेवियर इज, हाउ यू कैन कैटेगराइज इट। नेक्स्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर हम देखेंगे, यानी कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसमें आ जाएंगे, एंड फैक्टर्स इन द वर्क एनवायरनमेंट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, विच आर एटीट्यूड्स एंड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमने आप 2 तरह के फैक्टर्स देखने हैं। एक हमने देखना है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में all those factors which are external to the organization as well as that are internal in the organization but they are external to the employee, such as within the organization जो environment organization का है वो भी external factor में ही यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है, वो internal factor नहीं है, वो भी external ही है, although that is external to the employee, although that is internal to the organization but that is external to the employee, therefore that is considered an external factor। और इसी तरह ही जो है मैक्रो एनवायरनमेंट जिसको आप बोल लें, या एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो एक्सटर्नल टू द एम्प्लॉई एज वेल, देयरफॉर दे आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स।
और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड्स हैं, स्किल्स, एबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं. व्हाई दीज आर इंटरनल फैक्टर्स? बिकॉज दे आर इंटरनल टू द इंडिविजुअल, कि आपका स्किल लेवल क्या है, आपकी एबिलिटीज़ कितनी हैं, एंड सो ऑन. इसी तरह जो आपके एटीट्यूड्स हैं ये दे आर ऑल्सो इंटरनल टू यू, तो ये इसमें इंटरनल फैक्टर्स हो गए. तो ये हम बेसिकली जब इसका मॉडल स्टडी करेंगे तो उसमें हमने मेनली ये चीज़ें हैं जो वी आर गोइंग टू सी दीज थिंग्स. अच्छा, मेजर पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज what in your opinion is the major purpose of HRD? Human resource development कह लें, human resource management कह लें, whatever you may say, because देखें HRD की एक is a smaller part of HRM. तो it can be HRM is used in a broader context, and HRD का since function है only development, वो development focused है, training, development, organization training and development of employees, ठीक है. But HRM is overall management, so it includes all the aspects of managing the employees, and training is only one aspect of that. So what is the major goal of HRD? Okay, a major goal of HRD interventions is to assist employees and organizations in achieving their goals, right? So of course HR का function जो है या major goal यही है कि employees को assist किया जाए in a way that they can achieve the organizational goals. वो अपने goals achieve करें और या वो organization के goals achieve करें through meeting their own goals. और their own goals का मतलब ये नहीं है कि उनके personal goals, of course इसका मतलब ये है कि जो goals उनको company ने assign किए हुए हैं वो meet करें, और वो जब वो meet होंगे तो of course it means कि organization के goals meet हो रहे होंगे. Then HRD professionals help employees by designing and developing programs that promote individual development, right? So HRD professionals, they help the employees to design the programs, to develop the programs for their individual development. HRD also improves organizational performance. Another goal of HRD interventions is an effort to change employee behavior. So this is the point that we wanted to come to. ठीक है कि बाकी चीज़ें तो एक जगह पे हो गई. एक तो ये है कि वो एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करें इस तरह से कि वो एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स हैं वो मीट हों और एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट होंगे. ठीक है, तो ये भी इन अ वे आप यही कह सकते हैं कि जब आप एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि उनके एटीट्यूड्स को, उनके बिहेवियर्स को इस तरह से चेंज करेंगे कि दे आर परफॉर्मिंग बेटर, दे आर बेटर एबल टू अचीव देयर गोल्स, एंड एज अ रिजल्ट देयर अल्टीमेट आउटकम जो है वो अचीव हो सके. इसी तरह HRD का और गोल है कि इंप्रूव करे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि इंपॉर्टेंट गोल HRD इंटरवेंशन का यही है, इट शुड मेक एन एफर्ट टू चेंज एम्प्लॉय बिहेवियर. ठीक है, एंड अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि HRD या HRM का मकसद क्या है, टू ब्रिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन द एम्प्लॉय बिहेवियर सो दैट जो कंपनी ने उनको गोल्स असाइन किए हैं वो मीट हो सकें. ठीक है, तो ये बेसिकली that's why there is alignment between HRD, HRM and organization behavior. Overlapping इसलिए इनमें है, that is why they are linked, because they cannot work stand alone. ठीक है, अब उसके बाद है HRD provides skills and behaviors to employees which assist in increasing their performance which leads to accomplishments. ठीक है, तो उनको इस तरह से उनकी बिहेवियर और स्किल्स वगैरह में मॉडिफिकेशंस लाएं कि वो they can bring accomplishments to the organization on the whole. Types of behavior की, या जब हम ये कहते हैं कि to bring necessary changes in the behavior of the employees, ठीक है, या उनमें उनको interventions के साथ modification लाना behavior of the employee, this is the objective of HR. तो employee behavior से हमारी क्या मुराद है? What do we mean by employee behavior? You have any ideas? What do we mean by employee behavior? Employee behavior से मतलब क्या है हमारा? किस तरह का behavior? कौन सा behavior? Okay, within the context of the organization, जब हम organization की बात कर रहे हैं, at workplace की बात कर रहे हैं, तो of course within that context, when we are talking about employees' behavior, it means that we are talking about their task performance, or it means that we are talking about their organizational citizenship behavior. So these are the two types of behavior that we are talking about mainly. देखें, जब आपको एक चीज़ तो ये है कि जब भी हम बिहेवियर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम मोर और लेस
we are referring to the job performance of the employees या उनके organizational citizenship behaviors. But of course there are a number of other types of behaviors that that can be referred to when we are talking about employee behavior. For example, you can refer to proactive behavior. Of course, proactive behavior is different from task performance behavior से different है. Organizational citizenship behavior is different from जो है वो proactive behavior से different है. फिर इसी तरह actual turnover वो क्या है, वो भी आपका behavior है या turnover intentions. और इसी तरह ही और आपके क्या behaviors हो सकते हैं. There can be a number of other जो है वो behaviors हो सकते हैं जो कि आपका अदर देन दिस टास्क परफॉर्मेंस एंड OCBs. ठीक है, बट यहाँ पर हमने ये दो टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स क्यों चूज किए, ये दो आपकी बुक में इसलिए मेंशन किए गए हैं क्योंकि एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स द अदर बिहेवियर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि टास्क परफॉर्मेंस तो एक मेजरली वो एक ऐसी चीज है जिसमें the employee को उसके रखा ही टास्क परफॉर्मेंस के लिए गया है, to perform that particular task. So if the employee is not doing that particular task, उसी टास्क के अगेंस्ट उसको evaluate किया जाएगा and so on. So if he is not performing even that task, then there is no point in that employee staying there. ठीक है, therefore ये तो बिल्कुल बेसिक बिहेवियर हैं जिनकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. और जब हम यहाँ पे रेफर कर रहे होंगे तो we'll be referring to these two behaviors. Okay, but not the other ones. Although there can be, जैसे मैंने आपको बताया कि a range of other behaviors can be there. Innovative behaviors जैसे हो सकते हैं, creative behaviors हो सकते हैं. ठीक है, तो एक range of other behaviors can be there, but लेकिन हम उनको यहाँ पर रेफर या डिस्कस नहीं करेंगे. जब हम behavior की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम टास्क परफॉर्मेंस की, मेनली टास्क परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. यहाँ हम OCB की बात कर लेते हैं. टास्क परफॉर्मेंस और OCB में अब ऑफ कोर्स आपको डिफरेंस इन दोनों में आई एम श्योर कि पता होगा या होना चाहिए. टास्क परफॉर्मेंस जो है ये बेसिकली ये तो ये आ गई कि जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एम्प्लॉयर के साथ, एज पर दैट जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है यू आर सपोज टू परफॉर्म ऑल दोज असाइनमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गई आपकी टास्क परफॉर्मेंस बिहेवियर कि अगर आप वो एज पर द रिक्वायरमेंट्स, अगर वो जो आपको जॉब की मॉडल आपको जो दिया गया है कि ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इफ़ यू आर कंप्लाइंग विद दैट, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग देयर, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप टास्क परफॉर्मेंस बिहेवियर शो कर रहे हैं. ठीक है, यू आर परफॉर्मिंग ए टास्क. ठीक है, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट, इफ यू आर डूइंग सम ऑफ दोज, इट मीन्स दैट आप पार्शली उसको परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी 100% सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है. This is how it will be gauged. Then we have the organizational citizenship behavior. So organizational citizenship behavior is basically the extra role behavior. It is also called the extra role behavior. Unlike the task performance, which is the in role behavior, OCB is the extra role behavior basically. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो बियॉन्ड योर असाइंड रोल या असाइंड टास्क है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग बिहेवियर्स, व्हेन यू हेल्प द कोवर्कर, आपका कोई कोवर्कर है एंड ही इज ओवरवर्क्ड या उसके पास काम ज़्यादा है, ही इज़ नॉट एबल टू मीट हिज डेडलाइंस और ही इज़ स्टक अप समवेयर, तो यू गो एंड हेल्प हिम. ठीक है, आप उसको ट्रबल शूटिंग में हेल्प कर दें या उसका एक शेयर कर लें, कुछ काम उसका लोड शेयर कर लें. ठीक है, टू हेल्प हिम एंड यू ऑल्सो आप यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू ऑल्सो सिट विद हिम टू शेयर हिज ओवर टाइम या ओवरलोड को शेयर करने के लिए. तो दीज आर ऑल हेल्पिंग बिहेवियर्स जो आप शो कर रहे होंगे. ठीक है, एंड दीज हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ कोर्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन बट स्टिल यू आर परफॉर्मिंग देम, दैट्स वाई यू आर कॉलिंग देम एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर्स. और जो टास्क बिहेवियर हैं वो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इन रोल बिहेवियर्स बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर रोल, यू आर परफॉर्मिंग विद इन योर रोल. ठीक है, so OCBs are basically the extra role behaviors and they are highly appreciated and encouraged in the organization because जो OCBs हैं उनका ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है OCBs का भी. ठीक है, एक तो पॉजिटिव कल्चर इस्टेब्लिश होता है, पॉजिटिव क्लाइमेट इस्टेब्लिश होता है. ठीक है, उसके बाद ये है कि इट इन्फ्लुएंसेस ओवरऑल एम्प्लॉई मोरल को बूस्ट करने में और दूसरे जो पॉजिटिव आउटकम्स इससे रिसर्च हैज रिपोर्टेड दैट इट रीप्स अ नंबर ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स द OCBs. Now the model of employee behavior जिसकी हम बात कर रहे थे,
what are the different forces that influence the behavior? We need to discuss this so that we can come up on the model of the employee behavior. So there are a number of factors basically in the external environment, जैसे हमने पहले बात की, that influence the employee behavior, and similarly there are a number of factors in the internal environment that also influence the employee's behavior. ठीक है, तो फिर इसमें सबसे पहले जो factors आ गए external to the environment या external to the employee, such as external environment, economic conditions, laws and regulations, etc. ये affect करते हैं employees को. Then work environment such as the supervision, organization, co-workers, outcomes of performance. So these are all the factors which influence in the external environment the employee or the behavior of the employee. And within the organization, within the employee, there are the factors such as motivation, attitudes, knowledge, skills and abilities, the KSAs. They influence the employees. ठीक है, अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम चलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर से, ठीक है, और वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अच्छा, ये देखें, ये मॉडल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इट्स नॉट बेसिकली ओनली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट ऑल्सो इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट भी मौजूद है. सो फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप अगर ये देखें कि टॉप पे देयर इज द इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, लेबर मार्केट कंडीशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, लेबर यूनियंस, ऑल दीज फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे इन्फ्लुएंस द employee behavior. Then in the external factors which are within the organization such as the supervision, organization, co-workers, हम इन सबको डिटेल में आगे फर्दर देखेंगे. ठीक है, और फिर then we have the factors in the internal factors which are within the employee such as the motivation, attitude, skills and knowledge, abilities. So they all these factors together they influence the behavior which is the task performance जैसे हमने पहले किया, और organizational citizenship behaviors, इन दोनों को ये influence कर रहा है. और फिर ये जो outcomes हैं ये क्या है, personal and organizational outcomes जो हैं वो both उनसे रीप होते हैं. सच एज पर्सनल, जैसे परफॉर्मेंस इंडिविजुअल की हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये बिहेवियर जब आप शो करेंगे तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इन्हांस होगी, प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी और आउटकम्स इन्हांस होंगे इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, कमिटमेंट वगैरह एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं दे विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स. ओके, तो फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे. आई एम श्योर कि आप लोग जैसे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द ये जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस है, जैसे ये पेस्टल फ्रेमवर्क वगैरह हैं. PESTEL is the, I think it's the political, economic, social, environmental, legal, ये जो फ्रेमवर्क है जैसे. ठीक है, so it's basically based on the similar, यहाँ जो पोर्टर्स की हैं वो स्ट्रेटजीज हैं पोर्टर की. ठीक है, सो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडीज़ हैं और दे आर, आई एम श्योर यू पीपल मस्ट हैव बड़ी बेसिक से स्टडीज़ हैं. तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन जो भी है आपका BBA वगैरह, इसमें आपने आई एम श्योर ये किए होंगे डिटेल में. तो यहाँ पे एक आधी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा इसको लिंक अप करने की कोशिश करूँगी. बट ऑल दो यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, ठीक है, और एट द कॉर्पोरेट लेवल, तो वो क्या करती है, वो इस तरह का एक एनालिसिस करती है. स्वॉट एनालिसिस भी जिसको आप बोलते हैं, और आई एम श्योर कि आपने वो पढ़ा होगा. तो स्वॉट एनालिसिस में जैसे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ऐसे ही है ना. तो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस कौन सी होती हैं, वो इंटरनल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल होते हैं कि एक्सटर्नल मार्केट में, एनवायरनमेंट में आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या थ्रेट्स हैं, और आपके पास इंटरनली कितनी, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस क्या हैं, मतलब कितने आपके रिसोर्सेज में आपकी स्ट्रेंथ है, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज में स्ट्रेंथ है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज में मे बी आप वीक है. ठीक है, और इसी तरह ही जो आपकी अदर देन स्ट्रेंथ आपका आ गया कि यू नो एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वगैरह आ गई, और उसके बाद ये कि वीकनेसेस आपकी, ठीक है, कि वीकनेसेस आपकी क्या हैं.
मतलब जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में इट कुड बी कि आप वीक हैं, आप वो आपका स्ट्रॉन्ग एज नहीं है, ठीक है, बट टर्नओवर बहुत ज़्यादा है ड्यू टू सम रीजंस, आपके पास उतनी स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है जितनी होनी चाहिए एक्सेट्रा, तो वो आपकी वीकनेस आ सकती है। या आपके पास प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट कैन बी योर वीकनेस। मशीनरी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग या एडवांस नहीं है, वो एक वीकनेस हो सकती है। सॉफ्टवेयर आपका इतना स्ट्रॉन्ग या एडवांस नहीं है, वो एक वीकनेस हो सकती है। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ वीकनेसेस। तो फर्म जो है वो क्या करती है, स्ट्रेटेजी जब बनाती है तो वो अपनी स्वॉट एनालिसिस करती है, देखती है कि वो उनको मैच करने की कोशिश करती है कि उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मार्केट में क्या हैं। फिर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्या वो थ्रेट्स को ओवरकम कर सकती है, उन अपॉर्चुनिटीज को रीप कर सकती है, और उनको रीप करने के लिए क्या उस फर्म के पास इनफ स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और क्या उनकी वीकनेसेस जो हैं वो उन एरियाज में तो नहीं है, ठीक है, और उनको वीकनेसेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो इस तरह का एक एनालिसिस होता है जो एक फर्म कैरी आउट करती है, ठीक है। और इसका मकसद बेसिकली जब एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस आप करते हैं, या एक्सटर्नल इसको स्कैन भी बोलते हैं, जब आप एनवायरमेंटल स्कैन करते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि कंट्री की फॉर एग्जांपल क्या कंडीशंस हैं, जैसे उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पे रिसेशन चल रहा है, वहाँ पे बूम चल रहा है, वाई बिकॉज उससे डायरेक्टली इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे क्या चल रहे हैं, ठीक है, और फिर ये है कि वहाँ पर जो है आपके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कैसे फिर इन्फ्लुएंस करेंगी, क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं बाइंग पावर को ऑफ द कंज्यूमर्स की बाइंग पावर को डायरेक्टली ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट्स बहुत हाई हैं तो ऑफकोर्स कंज्यूमर की बाइंग पावर कम होगी। फिर मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर की बाइंग पावर को, ठीक है। फिर ओवरऑल अगर मार्केट में स्लंप है या रिसेशन है तो उसका मतलब है बाइंग पावर कम होगी, प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, और अगर बाइंग पावर ऑन द अदर हैंड ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। तो एम्प्लॉय बिहेवियर को ये चीज़ें इन्फ्लुएंस इस तरह से करती हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिसेशन एंड डाउन टर्न देयर कैन बी अ नंबर ऑफ इम्प्लीकेशंस सच एज रिसेशन और डाउन टर्न में। तो आप ये देखें कि जो इसका मतलब है कि लेबर मार्केट जो है वो काफ़ी लूज होगी, यानी कि देयर विल बी क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है, रिसेशन है, एज अ रिजल्ट पीपल ऑर्गेनाइजेशंस में इतना ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट लेबर मार्केट विल बी लूज, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल्टरनेटिव जॉब्स। तो एम्प्लॉइज जो है उनके ऊपर एक तो ये स्ट्रेस है कि दे नो दैट जॉब सिक्योरिटी के उनके ऊपर थ्रेट्स होंगे अंडर डाउन टर्न या बैड इकोनॉमिक कंडीशंस में, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास लेबर काउंट ज़्यादा होगा एंड उनकी डिमांड या उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है दैट माइट बी लोअर्ड बिकॉज ऑफ द स्लम्प। एंड जो एम्प्लॉइज हैं दे वांट, उनको जॉब इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ सिचुएशन माइट ले ऑफ, ठीक है। तो इस तरह का एक तो हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस आपको इस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। तो आप कैसे, आपने यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स, अपने इम्प्रूव करें, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस करें सो दैट यू कैन सर्वाइव अंडर सच कंडीशंस। ऑर्गेनाइजेशन आपको ले ऑफ ना करे, बिकॉज यू ऑल्सो कैन फोरसी के अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं दैट माइट ऑल्सो बी लो बिकॉज ऑफ द रिसेशन गोइंग ऑन, ठीक है। और ये तो इकोनॉमिक कंडीशंस तो आपके फिर ये इस तरह से आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगी कि हाउ you might try to improve your performance, for example, so that you can stay with the organization and so that you have a higher chances of staying in the organization and you can be a survivor from the layoffs, ठीक है, if the case be। तो ये आपके इस तरह से बिहेवियर को एम्प्लॉई के को इन्फ्लुएंस करती है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी ऑफ कोर्स एम्प्लॉई बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। जब व्हेन आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल मार्केट में जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इफ द टेक्नोलॉजी दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग करंटली इफ इट हैज बिकम ऑब्सोलीट एज अ न्यू टेक्नोलॉजी हैज टेकन इट्स प्लेस, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है which is faster and quicker, वो if the organization introduces that software, as a result क्या होगा आपका जो आप as an employee how it will affect you, you have to learn that technology, so that is influencing your behavior. If you will not learn that technology, you will be left behind, you won't be able to operate that software, your performance will reduce, it will suffer, and as a result आपका जो behavior है वो negatively influence हो गया because of this technological change,
ठीक है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो होती है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ऑल्दो दैट्स अ लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, और हमारे पास काफ़ी देर से वो पहुंचती है, बट व्हेन इट रीचेज अस देन वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्व्स, ऑर्गेनाइजेशंस को अडेप्ट करना पड़ता है। यू सी कि 1990s में जब आईटी का बहुत बूम था तो कैसे इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे मूव्ड टू द सॉफ्टवेयर और आईटी की तरफ उन्होंने मूव कर दिया, मैनुअल जो अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स की तरफ कितनी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में भी मूव की, और अब जो है वो मैनुअली ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग जो है वो बहुत कम हो गई है। अभी भी कुछ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनुअल वर्किंग होती है, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स पे ऑपरेट कर रही हैं, मैनुअल वर्किंग इज जस्ट रिड्यूस टू अ मिनिमल। तो अब इस तरह की एक इट वाज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज, दैट ईदर दे हैव टू do or die situation, right? Either they do it or they are no more. So this is how it influences the behavior of the employees. Then again the labor market conditions, they as I told you earlier in reference to the economic conditions कि अगर वो bad हैं तो इसका मतलब है कि labor market conditions भी bad होंगी। तो sometimes ये होता है कि कभी जो है labor की skilled labor की जैसे हर वक्त shortage होती है, they are in shortage all the time, तो skilled labor के लिए तो क्या है कि market is tight, तो वो उनका क्या है कि उनके लिए they can have good opportunities, they you can say that you are from the different competitors because they are high in demand and they have less in supply, the skilled labor force such as the doctors, such as the professional nurses, ठीक है, scientists हो गए, या फिर जो IT professionals हैं, ये वो लोग हैं जो कि highly skilled workforce है and they are always higher in demand across the world and they are short in supply, ठीक है। तो ये इनके लिए तो मार्केट इतनी, उनके लिए और तरह की implications हैं, और जो बट द skilled workforce that is semi skilled और unskilled है, उसके लिए unskilled labor के लिए implications और तरह की हैं, because there are numerous replacements available, labor market is very loose, ठीक है। So if you don't behave properly, if you don't work properly, अगर आप appropriate अपनी performance नहीं देते तो you'll immediately be kicked out and you'll be replaced by some other worker. Then the laws and regulations, they also affect very strongly the laws and regulations. Of course the government के laws जो हैं वो कैसे influence करते हैं, या regulations हैं, not only local but also international regulations, ठीक है। फिर इस तरह regulatory bodies होती हैं, जैसे जो Security and Exchange Commission of Pakistan is basically क्या regulatory body है जो कि जितनी भी companies हैं उनको उनके लिए regulations बनाती हैं, they have to follow those regulations such as disclosure requirements etc, registration के बारे में, ठीक है, अपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक्सेट्रा। सो दे हैव ऑल द सारी रेगुलेशंस हैं, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये आल्सो फ्रॉम द थर्ड पार्टी ये इस तरह की रेगुलेशंस आ रही होती हैं, या जैसे स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो रेगुलेट करता है, सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो वो कमर्शियल बैंक्स को टाइम एंड अगेन वो जो है वो नोटिस भेज रहा होता है कि आपने यू हैव टू prudential regulations हैं, जैसे if you are familiar कि that is also a regulatory document है from the central bank to the commercial bank, तो उसमें different clauses हैं जो उनको follow करनी पड़ती हैं। तो of course उनके फिर again जब इस तरह की clauses, इस तरह की regulations आपको bodies की तरफ से आ रही हैं, या कोई laws इस तरह के बने हुए हैं, government के laws हैं या international laws हैं, जैसे labor law है international कि आप child labor नहीं करवा सकते, forced labor नहीं हो सकती, तो इसके of course employees के ऊपर influence है through the organization। तो फिर वो employees के ऊपर भी उसके influence होते हैं कि employees have to behave, they have to work in that direction. Then of course labor unions, they also have an influence on they also part in the external environment and they have the influence on employees behavior कि अगर labor unions जो हैं वो उनकी क्या strength है, वो कितनी strong है, how they are representing the employee rights को, ठीक है। तो they might be strong enough कि वो employees के rights को जो है वो सिक्योर कर लेती हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट विम्स, ठीक है। तो देन दैट्स हाउ दे इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉइज बिहेवियर, और दे कैन इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉइज बिहेवियर। सो यहाँ पे एग्जांपल आपकी एक दी गई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डाउनसाइजिंग की। So let's see what it is. It says that in the wake of any economic, political or technological upheaval, the external forces often lead organizations to reduce the workforce. ठीक है, downsizing जो layoff जैसे हमने already इसका जिक्र किया था. Then downsizing refers to the voluntary actions
on the part of the organizations to reduce overall size of their workforce. ठीक है, तो डाउनसाइजिंग का इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि क्या है. HRD must advise organizations must invest and train the survivors of the downsizing on how to carry out their responsibilities after downsizing and help in retaining rather than lay off. तो डाउनसाइजिंग का मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाइवर्स हैं, एक तो ये कि जब उनको ये फियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने डाउनसाइजिंग करनी है तो वो अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म बेहतर करने की. दे वांट टू बिकम मोर एम्प्लॉयबल दैट इन केस they are not retained, they are laid off from this organization, they can be hired by some other organization. So they try to be more employable. And even after when they survive, when they are the survivors, तो again एक तो उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं ऑफ दिस ले ऑफ प्रोसेस. सर्वाइवर्स को भी ये काफ़ी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है ले ऑफ का प्रोसेस, बिकॉज उनको जॉब सिक्योरिटी तो इनसिक्योरिटी तो उनके अंदर आ जाती है कि इफ़ देयर को वर्कर और देयर कोलीग हैज़ बिन हिट तो इट कुड हिम ऑल्सो. ठीक है, तो वो एक इनसिक्योरिटी तो उनके अंदर आ जाती है और दे कुड फील कि इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में भी अराइज हो सकती है एंड देन दे कैन बी लेड ऑफ. तो इसमें एक तो उनको ट्रेनिंग वगैरह अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग्स दी जाएं सो दैट वो इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर सकें, और दूसरा है कि उनको एम्प्लॉयबिलिटी की जो ट्रेनिंग है वो देनी ज़रूरी होती है. एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयबिलिटी की अवेयरनेस और एम्प्लॉयबिलिटी की ट्रेनिंग देनी ज़रूरी होती है. देन फैक्टर्स इन द वर्क एनवायरनमेंट, कि वर्क एनवायरनमेंट जो है वो मैंने फिर आपको बताया कि दूसरा फैक्टर जो है वो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है ना, तो रहेगा है तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही, नॉट द इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बार बार डिस्टिंक्शन बता रही हूँ कि जब हम स्वॉट एनालिसिस वगैरह की बात करते हैं तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस होता है उसको हम इंटरनल एनालिसिस कहते हैं. यहाँ पर फॉर दिस इस बुक में जैसे कि रेफर किया गया है, इस जो मॉडल ये वाला हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें इन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि इसमें इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स हैं उनको भी एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही डाला हुआ है उन्होंने. ठीक है ना, तो बेसिकली उन्होंने वर्क एनवायरनमेंट कह लें या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही है. तो इंटरनल एनवायरनमेंट में विद इन द जो एम्प्लॉई एनवायरनमेंट है, यानी उसकी जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, मोटिवेशन है, वो सारा जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको दे हैव कॉल्ड दैट एज इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो अब इसके आउटकम्स जो हैं वर्क एनवायरनमेंट के वो आप देख लें. फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो आउटकम्स है, दूसरा सुपरविजन एंड लीडरशिप, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन और चौथा को वर्कर्स. ये 4 फैक्टर्स हैं जो वर्क एनवायरनमेंट में अभी हम देखने जा रहे हैं. ओके, फर्स्ट वी सी दैट आउटकम्स दैट कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर. One is the personal outcomes, which are those that have value to the individual, such as pay, recognition or reward. राइट, एक तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय बिहेवियर को, मतलब आपको जितने ऑफ कोर्स इट्स लॉजिकल टू अंडरस्टैंड दैट जो पे, रिकग्निशन, हमने पीछे जब रिवॉर्ड्स वगैरह पढ़ा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पढ़ी, इन सब चीज़ों में हमने यही देखा कि ये मोटिवेटर्स हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपको कितनी सैलरी, रिकग्निशन, बेनिफिट्स वगैरह जितने ज़्यादा मिलेंगे उतनी आपकी सेटिस्फेक्शन जॉब के साथ ज़्यादा होगी और उतनी आपके पॉजिटिव होगा बिहेवियर. ठीक है, तो एक तो ये है कि पर्सनल आउटकम्स आपको जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपका बिहेवियर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होगा. एक तो आउटकम्स पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल रहे हैं, पर्सनल आउटकम्स क्या मिल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स क्या हैं, सच एज द थिंग्स दैट आर वैल्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सच एज द टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी वगैरह. क्वालिटी क्यों, तो इसमें 2 तरह के आउटकम्स आपके हो गए. एक तो ये कि आपको पर्सनली क्या मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आउटकम्स किस तरह के हैं. ठीक है, सच एज प्रोडक्टिविटी आप कितनी दे रहे हैं, क्वालिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीम वर्किंग कैसी कर रहे हैं. तो ये चीज़ें आ गई ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स में. तो ऑफ कोर्स ये भी इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉयज़ बिहेवियर को. सो एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर. ठीक है, तो आप मतलब अगर मैं ये परसीव करती हूँ कि मुझे अच्छी पे, अच्छी सैलरी मिलेगी तो ऑफ कोर्स मैं पॉजिटिवली बिहेव करूँगी. ठीक है, बट अगर मैं ये परसीव करती हूँ कि यार मुझे अच्छी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी या माई सैलरी और माई पे इज़ नॉट जस्टिफाइड या आई एम नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर माई एफर्ट्स, तो फिर क्या होगा कि उसके मुझे एज अ रिजल्ट मेरा बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं ये परसीव करती हूँ कि यार द टीम वर्क क्वालिटी इज़ गोइंग टू बी पुअर, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो फिर एज अ रिजल्ट अगेन मेरा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव नहीं होगा. सो एक चीज़ तो ये आ गई कि आउटकम्स कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर. तो इसी के रिलेशन में मैं ऑलरेडी आपको जो मोटिवेशन की थेरीज हैं ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये मोटिवेशन थेरीज लिंकअप हो रही हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ यूज़ हो रही हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ.
कि एक तो यहाँ पे देखिए वो आपको बता रहा है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जैसे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमने क्या किया था कि यही थी कि आप देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जो कोई भी आप काम करेंगे तो उसका जो आउटकम है वो क्या होगा और उसका आपके लिए मीनिंगफुल रिवॉर्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो then you will be motivated to do that activity or not. तो वो आपका behavior इस तरह से influence करती है. So this is how that theory is linked to the behavior. So as it states here that this theory states that employees will perform behaviors that they will perceive will bring valued outcomes. ठीक है, तो ये क्या है कि कैसे influence होता है आपका behavior at the workplace, that is through आपकी जो expectation है, as the name indicates, expectancy, आपकी जो expectation है from the outcomes, कि अगर आप वो काम करें तो उसको आपका क्या आउटकम मिलेगा, वो आउटकम आपके लिए मीनिंगफुल और एक्सेप्टेबल है। अगर वो है तो फिर आप वो काम एक्टिविटी वो करेंगे, देन यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट एक्टिविटी। सो दिस इज एंड देन यू विल शो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो फिर आप वो वाला बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज द इक्विटी थ्योरी है, वो भी इसको आउटकम्स को किस तरह से एक्सप्लेन करती है कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट आउटकम्स आर इवैल्यूएटेड बाय कंपेयरिंग देम टू द आउटकम्स रिसीव्ड बाय अदर्स, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि अगेन ये क्या है कि ये आउटकम्स को जो है वो लिंक किया ना इस थ्योरी ने भी एम्प्लॉय बिहेवियर के साथ। पहली ने भी एक्सपेक्टेंसी ने भी आउटकम्स को लिंक किया कि जो आउटकम्स थे इफ दे आर एक्सेप्टेबल टू यू देन दे विल शो, यू विल शो पॉजिटिव बिहेवियर। इसने भी यही कहा कि जो आउटकम्स आपको मिल रहे हैं वो आप रेफरेंट अदर्स के साथ कंपेयर करेंगे और अगर देयर इज इक्विटी इन द आउटकम्स, इनपुट आउटपुट रेशियो में अगर इक्विटी है, ठीक है, तो फिर यू विल कंटिन्यू डूइंग दैट बिहेवियर। अगर इक्विटी नहीं है तो आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे। अगर तो यू कैन से दैट योर ओवर इक्विटी है, यानी आपकी तरफ ज्यादा टिल्टेड है, तो फिर क्या होगा, यू विल कंटिन्यू डूइंग द सेम बिहेवियर, या आप इवन ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर इक्विटी आप इनइक्विटेबल सिचुएशन है, आपके पास कम है और दूसरे के पास ज़्यादा है, तो फिर आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे। अगेन इट विल इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, इट विल डिटरमिन योर बिहेवियर। फिर मैंने आपको एक नंबर ऑफ ऑप्शंस बताई थी इस सिलसिले में कि आप अपना बिहेवियर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या आप उसको आउटपुट्स को डिस्टॉर्ट करेंगे, कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जिसकी क्वालिटी कम हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। या फिर आप जो है वो अपना रेफरेंट अदर चेंज करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट कंपैरिजन मेक करने की कोशिश करेंगे, इमेज अबाउट योरसेल्फ यू विल ट्राई टू चेंज दैट। सो देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट बिकॉज यू वांट टू हैव अ परसेप्शन ऑफ इक्विटी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट इक्विटी यू विल ट्राई, या आप क्विट कर जाएंगे। तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आप चूज करने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू परसीव इक्विटी। तो ये सारी जो भी चेंजेस आप करेंगे दे विल बी changes in your behavior, there will be modifications in your behavior as a result of the output. तो इस तरह से output जो है वो influence करता है employee behavior को। तो ये हमने किया with the help of these two theories. Then we discuss the supervisor and leaders influence employees behavior, that how the supervisors and the leaders influence the behavior of the employees, right? तो इसमें हमने ये देखा कि ऑफ कोर्स जो सुपरवाइजर्स का रोल है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, एंड इट हैज़ बीन शोन इन मैनी स्टडीज एंड रिसर्चेज एंड इट इज़ प्रूवन ऑलरेडी कि सुपरवाइजर जो है वो बड़ा की रोल प्ले करता है एम्प्लॉय बिहेवियर को अलाइन करने में, ठीक है। और सुपरवाइजर, द वे सुपरवाइजर बिहेव्स हिमसेल्फ हरसेल्फ, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस कंसिडरेबली हाउ द एम्प्लॉयज विल बिहेव, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो आ गई इस विद रिलेशन टू दिस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपने ये देखा होगा कि समटाइम्स अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को, एक क्लास को, उसके किसी ग्रुप को फॉर एग्जांपल, नहीं किसी एक क्लास को ये कहें कि यू कैन नॉट डू इट और हैव लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू इन द टेस्ट, और यू कैन नॉट डू इट, या मेरे ख्याल में आप पास हो जाएं तो बड़ी बात है। जब वो टेस्ट होगा और वो होगा ना, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके ये माइंड में होगा कि ये टीचर की हमारे बारे में ये एक्सपेक्टेशन है, कि मतलब एक किस्म का टीचर ने आपको ये टारगेट दे दिया या उसने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दें कि इससे ज़्यादा तो वो एक्सपेक्ट नहीं करती इनके बारे में, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे हमने गोल्स में किया था कि चैलेंजिंग होने चाहिए,
ठीक है, तो वो भी बेसिकली इसी तरह की प्रोफेसी पे बेस्ड है जो हम अभी ये देख रहे हैं। तो जब आप गोल्स वगैरह या कुछ भी टारगेट्स वगैरह अपने स्ट्रेचिंग नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं कि उनमें चैलेंज और स्ट्रेच होना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी एबिलिटीज़ को स्ट्रेच नहीं करते, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, एंड बिकॉज दे थिंक दैट देयर टारगेट्स, देयर गोल्स आर ईजी एंड दे डोंट नीड टू मेक एनी एफर्ट टू अचीव देम। ठीक है, तो वो अपनी उतनी एफर्ट नहीं करते जितनी वो कर सकते हैं या जितनी उनको करनी चाहिए। तो एज अ रिजल्ट दे एंड अप एट अ लोअर लेवल। ठीक है, तो देयरफॉर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बेसिकली सेज द सेम। अगर आपका सुपरवाइजर आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, the more at the higher your supervisor expects from you, the more you will pay back, the more you will return. लेकिन अगर आप कम वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, आपको टारगेट कम देगा, तो आप भी उसका उतना ही टारगेट मीट करेंगे। अगर वो ज्यादा करेगा, ज्यादा देगा, तो आप उसका ज्यादा मीट करेंगे, आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, आपकी मोटिवेशन ज्यादा होगी और आप उसको अचीव करेंगे। ठीक है, सो द Pygmalion effect describes that how the expectations of a supervisor can influence the behavior of the, so this is called the Pygmalion effect. तो अगर आप देखें जैसे कोई असाइनमेंट वगैरह है, अगर आप स्टूडेंट्स को ये कहें कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छी असाइनमेंट कर सकते हैं एंड दे कैन डू दिस एंड दैट, तो आप जब आप वो आपके पास लेके आएंगे तो यकीनन अगर उतनी अच्छी नहीं भी होगी तो उससे नियरेस्ट ज़रूर होगी। इट विल बी मच क्लोजर टू दैट कंपेयर टू अगर आप किसी एक और ग्रुप को ये कह दें, एक सुपरवाइजर के मेरी ये इतनी की एक्सपेक्टेशंस हैं दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म ओनली एवरेज और अबव एवरेज। ठीक है, तो वो उसी तरह का आपके पास असाइनमेंट, उसमें और उन दोनों असाइनमेंट्स में बड़ा फर्क होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सो सुपरवाइजर्स एंड लीडर्स दे इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय बिहेवियर, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली लीडरशिप इज द यूज ऑफ नॉन कोर्सिव इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग अ गोल। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस तो करते हैं सुपरवाइजर्स और लीडर्स। ठीक है, अब इसमें ये है कि जो सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनमें और लीडर्स में थोड़ी सी मैं आपको डिस्टिंक्शन यहाँ पे बता देती हूँ, और बाकी ऑफ कोर्स हम डिटेल में जब हम लीडरशिप करेंगे तो उस वक्त भी मैं आपको लीडर के ट्रेट्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये डिफरेंसेस उस वक्त भी हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा वेरी ब्रीफली यहाँ पे ये बता दूं कि जो लीडर्स हैं उनके पास कोई फॉर्मल पावर या अथॉरिटी इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके पास हो। विदाउट दैट फॉर्मल पावर एंड अथॉरिटी दे गेट द वर्क, दे नो हाउ टू टेक द वर्क फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज, हाउ टू कीप देम मोटिवेटेड, और उनसे काम कैसे लेना है। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनी फॉर्मल पावर दे बेसिकली देमसेल्व्स सेट एग्जांपल्स फॉर देयर एम्प्लॉइज। ठीक है, कि हाउ द वर्क इज टू बी टेकन फ्रॉम देम। ठीक है, सो इज बेसिकली जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट इज मेंशन्ड दैट लीडरशिप इज द यूज ऑफ नॉन कोर्सिव इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली इसमें कोई आपकी जो पावर है या आपकी जो पनिशमेंट का एंगल है या रिवॉर्ड का एंगल है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लीडरशिप का मतलब ये है कि जो लीडर है वो अपनी सेइंग्स के साथ, अपने एक्ट के साथ वो इस तरह से मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को कि वो उनसे काम लेता है। ही नोस हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम द पीपल through his leadership abilities and through his leadership skills, but not through the formal or legitimate power sources. ठीक है, तो इसमें एक LMX theory है which is the leader member exchange theory. So what this theory says basically is that ये एक बड़ी यूनिक सी थेरी है लीडरशिप की, और बिकॉज ये थेरी जो है ये स्टडी करती है इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को बेसिकली स्टडी करती है ये थेरी। डायरेक्ट जो रिलेशंस हैं सबॉर्डिनेट के और लीडर के बीच में। द थेरी सेज दैट देयर, एक लीडर के तो काफ़ी सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, राइट। अब दिस थेरी सेज दैट हर लीडर का उसके हर सबॉर्डिनेट के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप होता है जो किसी एक लीडर का not every leader holds the same relationship with all the subordinates, and of course it's logical and it is true. आप अपने कहीं इर्द गिर्द देख लें, आप अपने ऑफिस में, अपनी यूनिवर्सिटी में देख लें, जो आपका सुपरवाइज़र है उसका अगर 5 या 7 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के साथ सुपरवाइज़र का एक जैसा रिलेशनशिप नहीं होगा। किसी के साथ बहुत गुड क्वालिटी रिलेशनशिप होगा, किसी के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो लीडर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ही डज द सेम, ही उसका कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ या उसके जो कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ गुड क्वालिटी रिलेशनशिप होता है, कुछ के साथ इतना अच्छा नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, यानी इंडिविजुअल हर सबॉर्डिनेट के साथ एक डायड बन जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप्स जो हैं ये बिटवीन द लीडर एंड द सबॉर्डिनेट दे डिफर। ठीक है, जिन सबॉर्डिनेट्स और लीडर के अच्छे डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं दे आर कॉल्ड बेसिकली इन ग्रुपर्स, वो इन ग्रुपर्स हो जाते हैं। और आउट ग्रुपर्स वो हैं जिनके अपने सबॉर्डिनेट्स और सुपरवाइजर्स के इतने अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं हैं, दे आर द आउट ग्रुपर्स।
तो एज पर दिस थ्योरी जो इन ग्रुपर्स और आउट ग्रुपर्स में ये डिवाइड हो जाते हैं वो सबॉर्डिनेट्स एज पर द रिलेशनशिप क्वालिटी विद देयर सुपरवाइजर्स। अब जो इन ग्रुपर्स हैं दे एंजॉय अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। वो मेन चीज तो देखें ये कि जो सुपरवाइजर है वो उनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करता है, ठीक है, वो उनको असाइनमेंट्स वो देता है जो ज्यादा चैलेंजिंग होंगी, जो ज्यादा रिवॉर्डिंग होती हैं, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है, जो ज्यादा क्रिटिकल होती हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ही ट्रस्ट दीज पीपल मोर एंड ही बिलीव्स दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, और वो उन कामों को कर सकते हैं, उसका उनके ऊपर ट्रस्ट होता है इन ग्रुपर्स पे। और जो आउट ग्रुपर्स हैं उनके ऊपर सिंस उसका ट्रस्ट इतना नहीं होता, इसलिए वो उनको इतनी चैलेंजिंग असाइनमेंट्स नहीं देता। द रूटीन लाइक असाइनमेंट्स या जिनमें इतना चैलेंज नहीं होता दे आर गिवन टू द आउट ग्रुपर्स, ठीक है। तो इन ग्रुपर्स जो हैं वो फिर टू फुलफिल दोज असाइनमेंट्स एक्सेट्रा दे आर आल्सो गिवन बेटर एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर्स एक्सेट्रा, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो वो इनको इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक्सेस ईजियर होती है। फिर जो इन ग्रुपर्स हैं वो दे आर मोर रिकग्नाइज्ड एंड दे आर मोर डोमिनेटेड, और फिर वो जो हाई फाई या मैनेजरियल या टॉप लेवल्स हैं, आपका जो मैनेजर है वो उन्हीं को इंट्रोड्यूस करवाएगा उनके साथ, ठीक है। तो इसमें क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का बेसिकली ये है, और इसमें व्हाई इट इज डन बिकॉज ऑफ कोर्स द लीडर जो है वो हर किसी से काम नहीं ले सकता। मतलब अगर उसके पास 10 सबऑर्डिनेट्स हैं और एक चैलेंजिंग टास्क है, तो वो जो एक नॉन परफॉर्मिंग या कम परफॉर्म करने वाला सबऑर्डिनेट है वो उसको वो टास्क दे के रिस्क नहीं ले सकता। देयरफॉर वो डिवाइड कर लेते हैं कि हु कैन डू व्हाट, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह की डिवीजन है कि आपने 2 ग्रुप्स बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वो तो एक इस तरह की डिवीजन हो जाती है। और ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म यही है कि दिस इज नॉट इक्विटी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन इक्विटी एलएमएक्स, कि आप इन ग्रुपर और ग्रुपर्स बना दें तो इसका मतलब है कि देयर इज नो इक्विटी, उनको इक्वल असाइनमेंट्स नहीं मिल रही, उनको इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्सेज नहीं मिल रहा, इक्वल शेयर ऑफ द पाई नहीं मिल रही। तो बट इट इज लॉजिकल टू डू सो बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस ये जो बनाए जाते हैं द थ्योरी सेज दैट ये जो इन ग्रुपर और ग्रुपर ये दीज आर बेस्ड ऑन द, ये कोई सब फेवरेटिज्म की बेस पे नहीं बनाए जाते बट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉइज जो पास्ट परफॉर्मेंस में अच्छे परफॉर्म करते आए हैं, हु हैव शोन देयर वर्थ, हु आर गुड इन शोइंग द रिजल्ट्स, वो बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकम पार्ट ऑफ द इन ग्रुपर्स एंड द वंस हु हैव नॉट परफॉर्म्ड दे बिकम पार्ट ऑफ आउट ग्रुपर्स, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देन एक फास्ट पेस के ऊपर क्विकर और रिस्क फ्री जो काम मैनेजर करवाने होते हैं उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वो इसके पास एक डिस्टिंक्शन हो कि किन लोगों को मैंने कौन सा काम करना है और वो कितनी एफिशिएंटली और कितने इन हाई ट्रस्ट मैनर हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसलिए ये एक एलएमएक्स थ्योरी जो है दिस इज व्हाट इट सेज दैट दिस इज हाउ एंड दिस इज हाउ दे इन्फ्लुएंस द वर्कर बिहेवियर relationships. Then we have this organizational influence. तो अभी तक तो हमने सुपरवाइजर का इन्फ्लुएंस देखा कि कैसे सुपरवाइजर इन्फ्लुएंस करता है। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन का देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी इन्फ्लुएंस करती है ऑफ कोर्स एम्प्लॉय बिहेवियर को, वन थ्रू रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्स। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टेंजिबल पे बेनिफिट्स बोनसेस बट ऑल्सो द टेंजिबल intangible things such as acceptance, recognition, training, etc. ये तो क्लियर है आप लोगों को कि रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है whether that is tangible और intangible। हमने इसको कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे करता है, बिकॉज अगेन इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स हैं, पैटर्न्स हैं, ठीक है। आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं बिहेव करना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वो जो वैल्यूज़ हैं वो दे पुट अ प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज़ दैट दे हैव टू फिट इन टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड दे हैव टू बिहेव लाइक दिस बिकॉज दिस इज डिजायरेबल वे ऑफ बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ दे विल नॉट बिहेव इन दोज डिजायरेबल वेज देन क्या होगा, उनको their behavior can be sanctioned, right, or it will be disliked by the organizational members. Okay, then we have the organizational influences में we have the job design. ये job design भी आपके behavior को influence करता है. So job design is the development and alteration of the components of a job, such as the tasks, scope, responsibilities, duties, etc. to improve प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। हमने जॉब डिज़ाइन को पहले भी डिस्कस किया है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पहले डिस्कस किया और हमने ये देखा कि जॉब डिज़ाइन जितना इफेक्टिव होगा, जितनी जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्वालिटी की होंगी, जितने उनमें इनरिचमेंट और एम्पावरमेंट ज़्यादा होगी, ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी, वैरायटी ज़्यादा होगी, सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी। ये सारा बेसिकली क्या है, जॉब डिज़ाइन है और जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और फिर एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपको उतना ही आपका जॉब डिज़ाइन जितना इफेक्टिव और पावरफुल होगा उतनी यूल बी एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड और उतना ही उनकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। तो वन ऑफ द लेक्चर्स दैट
आई गिव यू वो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल को बेसिकली इन डिटेल डिस्कस करेगा, ठीक है। और उसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम जॉब डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनके मोरल को इम्प्रूव करने के लिए, और विच लीड्स टू अ नंबर ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स सच एज enhanced productivity, less absenteeism and lower turnover, right, enhanced performance, enhanced commitment and so on. Then we have the co-workers influence, कि ऑफ कोर्स को-वर्कर्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ को और उनके जो है वो बिहेवियर को। को-वर्कर्स जिस तरह हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कि वो इन्फ्लुएंस करता है, इसी तरह ही जो या सुपरवाइजर का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता है, इसी तरह को-वर्कर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो को-वर्कर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आपकी उनके साथ सोशलाइजेशन भी हो रही होती है और आप उनके साथ समटाइम्स एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप उनको अपना काउंटर पार्ट भी समटाइम्स इन सम केसेस वो होते हैं आपके। तो जब आप स्पेशली टीम्स में ग्रुप्स वगैरह में काम कर रहे होते हैं या इवन आप यूर वर्किंग इंडिविजुअली, तो देयर इज अ नॉर्म, को-वर्कर्स का भी एक नॉर्म होता है ना, सो विच आर द इनफॉर्मल रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर एस्टेब्लिश्ड विद इन अ ग्रुप, ठीक है। सो अगेन जिन लोगों के साथ जहाँ पे आप बैठ के काम करते हैं, देयर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स विच आर एस्टेब्लिश्ड, वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव एंड दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है। तो फिर ये जो है अगेन जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में नॉर्म्स होते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस और प्रेशर डालते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने इस तरह से बिहेव करना है और इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह को-वर्कर्स भी डालते हैं, दे हैव देयर सेट डिजायर्ड नॉर्म्स and if you do behave and act accordingly, it's fine, otherwise your behavior will be sanctioned and will be discouraged by the co-workers, ठीक है। उसके बाद trust and cohesiveness है, which is the sense of togetherness and willingness to remain part of the group. So among members it is important criteria for successful teamwork. इसमें अब आप ये देखें कि जब हम टीम की या ग्रुप की बात करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस तो करते हैं हर एम्प्लॉय के बिहेवियर को, लेकिन उस टीम और ग्रुप की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें कोहेसिवनेस होनी चाहिए और उसमें ट्रस्ट होना चाहिए उस टीम में, फॉर द टीम टू वर्क टुगेदर एंड ग्रुप एक स्पिरिट में काम करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं होगी तो इट इज़ अगेन गोइंग टू इन्फ्लुएंस द बैडली इन्फ्लुएंस करेगा एम्प्लॉयज़ को और उनके बिहेवियर को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है कि ग्रुप में हम ये चीज़ें जब हम आगे ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिटेल में देखेंगे कि ग्रुप थिंक का एलिमेंट आ जाता है, ये सोशल लोफिंग वगैरह का एलिमेंट आ जाता है और वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ग्रुप थिंक बेसिकली ये होती है कि जैसे अब 4 या 5 या 6 पीपल का एक ग्रुप है, इफ दे आर सिटिंग दे आर डिस्कसिंग समथिंग, ठीक है, और वो 5 लोगों का एक बात के ऊपर कंसेंसस है, लेकिन जो एक बंदा उनमें से ग्रुप मेंबर है उसका कंसेंसस नहीं है, एज अ डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन चूंकि 5 लोगों की ओपिनियन उसमें कंसेंसस है तो वो जो 6th वन है वो क्या करेगा, ही विल कीप क्वाइट, वो अपनी ओपिनियन नहीं देगा, ठीक है, ही विल कीप क्वाइट एंड एज अ रिजल्ट, और हालांकि इट इज़ पॉसिबल कि उसका जो आइडिया या ओपिनियन है दैट माइट बी बेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट, बाकी 5 जिस लाइन पे सोच रहे हैं या जो वो डिसीजन करने जा रहे हैं, the decision that is in the mind of the 6th person that might be better, but in the better interest of the group cohesiveness and togetherness he may keep quiet, वो चुप रहे और वो फिर डिसीजन दूसरा जो ज़्यादा माइट बी मोर ऑप्टिमल डिसीजन या ज़्यादा प्लॉजिबल हो वो शायद ना हो सके। सो दिस इज ग्रुप थिंक, ठीक है। तो इस तरह से देखें ग्रुप थिंक ने इन्फ्लुएंस किया एम्प्लॉय बिहेवियर को। दूसरा जो है वो इसमें क्या है, सोशल लोफिंग, मैंने आपको बताया, उसमें ये होता है कि जैसे जैसे टीम का या ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, जो इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर है या टीम मेंबर है वो अपनी जो एफर्ट है उसको कम करना शुरू कर देता है, तो बिकॉज देयर आर मोर मेंबर्स नाउ एंड ही स्टार्ट्स रिड्यूसिंग हिज एफर्ट। तो ये क्या है, ये सोशल लोफिंग है। तो ये चीज़ें इस तरह से को-वर्कर्स जो हैं या ग्रुप में जब वो काम कर रहे हों या इंडिविजुअली काम कर रहे हों वो आपको आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन का हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है कि मोटिवेशन जो है वो कैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो इसलिए मोटिवेशन की जो हम आगे फर्दर डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बिकॉज मेरे जो फ्यूचर में यू सी के
लेक्चर्स भी मैं अब आपको फ्यूचर में भी लेक्चर्स दूंगी, और मोटिवेशन के ऊपर हम काफ़ी सारे लेक्चर्स करेंगे। उसमें हम सारी मोटिवेशन की थेरीज वगैरह देखेंगे और विल सी के हाउ मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयज बिहेवियर, ठीक है, वो कैसे उसको डिटर्मिन करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, हाउ द HR जो है वो कैसे बेनिफिट कर सकती है मोटिवेशन थेरी और कॉन्सेप्ट से, जॉब्स को कैसे उसको मोटिवेशन को लेकर डिज़ाइन किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल टाइम्स कैसे इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट्स क्या हो सकती हैं, पे स्ट्रक्चर्स, रिवॉर्ड्स कैसे डिज़ाइन किए जाने चाहिए टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड एंड सो ऑन, ठीक है। तो आउटकम्स अल्टीमेटली क्या है मोटिवेशन की, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स में बताऊंगी। देयरफॉर यहाँ पे मोटिवेशन को मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि ये बेसिकली एक इंटरनल अब एलिमेंट आ गया। मोटिवेशन जो है, जैसे हमने पहले एक्सटर्नल एनालिसिस किया और एक्सटर्नल एलिमेंट्स देखे जो एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी तरह ये एक इंटरनल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन है, जैसे जितनी भी मोटिवेशन की थेरीज हैं, ठीक है, वो ये बताती हैं कि वाई एम्प्लॉयज़ वर्क, ठीक है, वो कोई काम क्यों करते हैं बेसिकली, तो वो यही एक्सप्लेन करती हैं कि आप उनसे कब काम ले सकते हैं या कोई काम कब करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेंसी थेरी, आउटकम्स रिलेटेड मैंने 2 थेरीज की आपको एग्जांपल दी, पहले एक्सपेक्टेंसी और इक्विटी की दी, तो उन्होंने यही कहा कि आपको अगर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा तो ओनली देन दे विल बिहेव इन सर्टेन डायरेक्शंस, उसी वक्त वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं कि एम्प्लॉय बिहेवियर को ये थेरीज कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, यू शुड हैव सम मोटिवेशन, वेदर दैट इज एन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड ऑल दिस, ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को, ये सारी चीज़ें जब हम आगे 4-5 लेक्चर्स करेंगे उनमें आपके लिए दे विल बी मच मोर क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस रेफरेंस से आपने देखा है कि आपको इधर लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको कीप इट इन माइंड एंड ट्राई टू लिंक how it is influencing motivation influences employee behavior with the discussions that we are going to do in the following sections, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एटीट्यूड्स हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज है, एबिलिटीज़ हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय बिहेवियर को। तो we'll discuss also this in our next lecture in detail when we do this together with the attitudes and job satisfaction. So with this I come up to an end for today's lecture. I hope you enjoyed it and I hope it was quite understandable for you people. I wish you best of luck. Thank you. Allah Hafiz.